Okay, a very good afternoon to all of you. Welcome you all in our SST class. Today we are doing chapter number 2, that is representation of the earth. Representation. What do you mean by representation? Can anyone tell me? Just use your chat box and answer. My first word is representation. Okay, chapter number 2, that is representation. What do you mean by, or anyone want to answer, then raise your hand. अगर किसी को आंसर करना है तो आप लोग हाथ खड़ा करेंगे. कोई नहीं. अगर हम लोग जो है रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स द वे दैट समबडी और समथिंग इज शोन और डिस्क्राइब्ड. ओके, फिर से बोल रहे हैं. रिप्रेजेंटेशन दैट मीन्स द वे दैट द समबडी और समथिंग इज शोन और डिस्क्राइब्ड. मान लो ये अर्थ है, इसको हम दिखा रहे हैं और इसके बारे में डिटेल वे में पढ़ा रहे हैं. दैट इज रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने कि व्हाट इज अर्थ, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द अर्थ. सो दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन. ओके, फिर से बोल रहे हैं. समथिंग दैट आर शोन और डिस्क्राइब. ठीक है, कोई भी चीज जो दिखाई जा रही है या फिर उसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन. सो इन चैप्टर नंबर 2 वी आर डिस्कसिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ. अर्थ के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, so we are talking about representation. Representation word that means something or somebody. You can say that कि अर्थ का जो है वो दिखाया भी जा रहा है अर्थ को, और उसके बारे में हम लोग उसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ रहे हैं. दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन. द वे in which we described or shown something or somebody is known as representation. So we are talking about representation of the earth. Okay. Arav, unmute yourself. Yes, ma'am. Arav, what is the shape of the earth? Spherical. Very good. Snehata. Yes, ma'am. Snehata, we are in Yes, class ma'am. 5 we have already discussed about the different imaginary lines of the earth. Can you tell me the names of the imaginary lines? Yes, ma'am. Latitude, longitude. Okay, very good. The longest line on the earth is? Ma'am, longitude. Longitude. And what is equator? Ma'am, the horizontal imaginary line on the globe between the halfway and between the North Pole and South Pole is called equator. Very good. Yes, right. Divyanka, unmute yourself. Yes, Divyanka, start your video. Yes, ma'am. Divyanka, what is the longitude? Ma'am, a vertical imaginary line. Okay. Vertical imaginary line. बस एक vertical North imaginary. pole. हाँ. Ma'am, to North Pole to South Pole. हाँ, तो complete this statement ना, सिर्फ vertical imaginary line बोल देंगे. हाँ. Vertical imaginary line which run from North Pole to South Pole is called longitude. South Pole. Okay, very good. Can anyone define grid? Just raise your hand.
Grid. My next question is grid. स्नेहलता आप बता सकते हैं? अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. बताइए ग्रिड क्या होती है? Yes, Roshan, unmute yourself. Yes, ma'am. Roshan, start your video. Tell me what is grid? The parallel of latitude and the median of longitude is to form a grid. फिर से बताइए. The parallel of latitude and the median of longitude to form a Meridian grid. of the longitude form when the parallel of latitude and meridian of longitude intersect with each other and that particular area is formed grid. यही है ना? Grid. longitude और latitude. Yes, ma'am. ये बॉक्स जो फॉर्म कर रहा है. यस. ओके. तो आई थिंक क्लास 5 में जो पढ़े थे एकदम क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं हो रहा आप लोगों को. वेरी गुड, वेल डन एवरीवन. प्राउड फील हो रहा है कि पढ़ा हुआ चीज डाइजेस्ट करके नहीं बैठे हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिदम. अनम्यूट योरसेल्फ. रिदम. रिदम, व्हाट इज ग्लोब? सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है ये. क्लास 3, 4, 5 में भी हम लोग पढ़ रहे थे. अपने वर्ड्स में ही आप बता दीजिए व्हाट इज ग्लोब. What is map? Map is a drawing of the earth on a flat surface. Okay, very good. Mute yourself. Divya, unmute yourself. हाँ दिव्या बताइए what is globe? A globe represents the three-dimensional view of the earth. हाँ, globe represent the three-dimensional view of the earth. We can say that globe is a model of the earth in a simple way. Class 3 में 4 में बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो हम लोग सिंपल सी चीजें उनको यही बताते हैं कि ग्लोब क्या है? मॉडल ऑफ द अर्थ है. ठीक है. ये जितने भी टॉपिक्स अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये पूरे आपको इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ने हैं लाइन बाय लाइन ये सारी चीजें. इनफैक्ट जो 5 जो बेसिकली हमारा जो मैपिंग इंडिया जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 10 वही का वॉस्ट वे में थोड़ा सा बड़ा फॉर्म में जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं. ओके. तो सबसे पहला डिस्कस करेंगे ग्लोब एंड मैप. उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप. फिर types of the map. Class 5 में we have already discussed that there are so many types of map like political, physical, thematic. Okay, but area wise on the basis of scale what are the types of map ये हम लोग को पढ़ना है. ठीक है. तो ये जो सारी चीजें हैं हम लोग यहीं पर करेंगे. इस हमारा यही पूरा चैप्टर जो है इसी के बेस्ड पे है. इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छा लगेगा पढ़ करके भी और ये नॉलेज जो है हमारे फर्दर आगे क्लासेस के लिए भी अच्छी है. ओके. नाउ फर्स्ट टॉपिक दैट इज ग्लोब. व्हाट इज ग्लोब? सिंपल वे वी कैन से दैट मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब. राइट. मॉडल ऑफ द अर्थ. अर्थ का मॉडल जो है हमारा ग्लोब है. इसका शेप कैसा है? तो इट इज अ स्फेरिकल इन शेप. स्फेरिकल यानी नॉर्थ पोल की तरफ से थोड़ा सा चपटा हुआ और साउथ और सॉरी वेस्ट और ईस्ट की तरफ थोड़ा सा उभरा हुआ. ठीक है. तो ये हो गया स्फेरिकल का शेप.
सर्किल नहीं बोल सकते कि अर्थ का जो है वो शेप सर्किल है, नॉट। अर्थ का शेप कैसा है, स्फेरिकल है। वो आप कैसे, तो ग्लोब को देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि अर्थ कैसा है। जैसे कि स्नेहलता ने बताया था कि अर्थ इज द, सॉरी दिव्या ने बताया था कि अर्थ रिप्रेजेंट द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द अर्थ, सॉरी ग्लोब रिप्रेजेंट द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द अर्थ। हम इस साइड वेस्ट का देख ले रहे हैं, ईस्ट का देख ले रहे हैं, फ्रंट का देख ले रहे हैं, लेकिन बैक साइड क्या है वो एक टाइम पे हम लोग नहीं देख सकते। जब उसको रोटेट करेंगे देन वी कैन सी द अनदर पार्ट ऑफ द अर्थ। इसलिए इसको क्या कहा गया है, 3D। ओके, 3D व्यू ऑफ द अर्थ। 3D मूवी देखते हो वैसे ही 3D व्यू अगर आपको देखना है अर्थ का तो आपको ग्लोब देखना होगा। ठीक है, क्लियर है। देन मैप क्या है, व्हाट इज मैप? मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप क्या है, हमारे अर्थ का ड्रॉइंग है किस पे, तो फ्लैट सरफेस पे है। ठीक है, दोनों का बेसिकली यही डिफरेंस है। ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ एंड मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। फर्स्ट डिफरेंसेस हो गए, क्लियर है। हम अभी फिर से ये रिपीट करेंगे और 1 बाय 1 मेरे को सारा डिफरेंस आप लोग बताओगे। मेरा फर्स्ट पॉइंट फिर से रिपीट कर रहे हैं, ग्लोब रिप्रेजेंट द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द अर्थ। या हम लोग अनदर पॉइंट अगर इतना बड़ा याद नहीं हो पा रहा है तो सिंपल वे में बोल सकते हैं कि ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ। मैप का फर्स्ट पॉइंट, मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। व्हाट इज मैप? मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। सेकंड पॉइंट, ग्लोब का हम लोग क्या बोल सकते हैं कि the shape of the continent, ocean, true location अगर बोला जाए कि globe represent the true location of the globe, ocean and continent. We can identify the different shape of the continent and ocean. Ocean का कैसा कर्व शेप है, continent का कैसा शेप है, ये हम लोग कहाँ देख पाएंगे, तो ग्लोब में देख पाएंगे। It give us limited information. ये डिसएडवांटेज है ग्लोब का कि हम लोग को सिर्फ लिमिटेड इंफॉर्मेशन ग्लोब देता है। बट इन मैप we cannot find out the true location of the any continent. हम लोग उस पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ट्रू लोकेशन कैसा होगा। बट मैप गिव अस अ डिटेल इंफॉर्मेशन, वी कैन कैरी इजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैप को हम लोग इजिली कैरी कर सकते हैं बट ग्लोब को हम लोग इजिली कैरी नहीं कर सकते हैं। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़े हो, आप लोग जानते हो, बस हम रिकॉल कर रहे हैं, आप लोगों को रिवाइज करा रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक होगा वो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। आप लोगों का कॉन्सेप्ट अभी भी कोई मतलब कि बिगड़ा नहीं था, सारे लोग बहुत अच्छे से जानते हो। लैटिट्यूड हम जब मेरा पढ़ाई हो रहा है, मेरा ट्रिक हम लोग यहाँ कि लंबा वाला लाइन जो लेटा हुआ लाइन है वो लैटिट्यूड हो गया और लंबा वाला लाइन लॉन्गिट्यूड हो गया। ये आप लोगों को 5 में भी मैंने बताया था क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। क्लियर है ना? तो क्लियर करने के लिए अगर बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि अर्थ का शेप हम लोग पढ़ रहे हैं कि अर्थ का शेप कैसा स्फेरिकल है, तो उसमें बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस जो है वो ड्रॉन करती है। जैसे आपकी इंडिया, आपका जो इंडिया कंट्री है वहां से एक लाइन ड्रॉ होती है जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। कैन एनीवन टेल मी? जस्ट रेज योर हैंड, हु कैन टेल द आंसर? The imaginary line that drawn on a India is called Nityant. Madam, Tropic of Cancer. Very good, Nityant. Start your video firstly, Nityant. Yes, Nityant, that is a Tropic of Cancer. कितने स्टेट से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है? मैम 2 सिर्फ 2 से जाती है? 2 नहीं तो 5 सुना था। अच्छा, रोशन? मैम 8 स्टेट। वेरी गुड रोशन, 8 स्टेट्स। ओके, आप जो है अभी नित्यांत ने कहा उसी को मैं रिपीट कर रही हूँ। आपका इंडिया का मैप आप देखोगे, एक इमेजिनरी लाइन जो है डॉटेड वे में पूरा ड्रॉ की हुई रहती है, राइट? वो कौन कौन से स्टेट से होकर के गुजरती है?
तो वो राजस्थान का भी कुछ पार्ट आता है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राइट, झारखंड, वेस्ट बंगाल, देन okay, Shivai can tell me. Yes, Shivai. मैम त्रिपुरा और ये मिजोरम। Very good. Tripura and Mizoram. So these are the 8 states through which our Tropic of Cancer run through. Okay, हम लोग का है Tropic of Cancer. Tropic of Cancer. Tropic of Cancer passes through 8 states of India. Okay, I repeat my statement. Tropic of Cancer passes through 8 states of India, namely Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Tripura and Mizoram. These are the 8 states. Okay, clear है यहाँ पे आप लोगों को? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वैसे ही हमारे पास डिफरेंट लाइंस